नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। हरिधाम सोखड़ा मंदिर के हरिप्रसाद स्वामी जी के निधन के बाद प्रेम स्वरूप स्वामी और प्रबोध स्वामी महाराज के जूथ के बीच में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल अब इस विवाद के चलते 10,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद हाईकोर्ट में पहुंचा है। दरअसल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हरिप्रसाद स्वामी जी के पर्सनल सेक्रेटरी की ओर से जबरदस्ती से साधु संतों को मंदिर में रखने के मामले में कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की अर्जी दी है और उसी के चलते आज वडोदरा जिला कोर्ट में साधु संत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। महानगर पालिका की सामान्य सभा कल मेयर के रोकड़िया की अगुवाई में आयोजित हुई थी। इस बैठक के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। दरअसल 2 दिन पहले रावपुरा इलाके में जो कौमी घर्षण देखने मिला था उस मुद्दे पर भी इस सभा के तहत चर्चाएं की गई। तो वहीं विपक्षी नेता अमीबेन रावत की ओर से इस सभा के दौरान स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की घोषणा करने की बात भी रखी गई। इसके अलावा अब बारिश के मौसम की शुरुआत से पहले बरसाती कांस पर से अवैध अतिक्रमण हटवाने और साथ ही जो जगह जगह अवैध अतिक्रमण खड़े किए गए हैं उन्हें दूर करवाने के मामले को भी रखा गया। अन्य कई मुद्दों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चाएं हुई। कॉर्पोरेशनना क्लास 4 ना शिक्षण समितिनो जो स्टाफ है 1992 में ए लोकोने नौकरी मળી थी। टेम्पररी हता। 2000 ની સાલમાં કોર્ટમાં ગયા હતા। 2013 માં ચુકાદો આવ્યો પછી એ લોકોને લેબર કોર્ટમાં જવાનું કહ્યું। 2019 માં લેબર કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો અને તમામને રેગ્યુલરાઇઝ કરી એમના તમામ હક્કો પેન્શન અને બધી વસ્તુ આપવાનો ચુકાદો આવી ગયો। આ વસ્તુ શિક્ષણ સમિતિના જનરલ બોર્ડે બી એપ્રૂવ કરી દીધી। હવે સામાન્ય સભાએ આ વસ્તુ એપ્રૂવ કરવાની હતી ત્યારે કોક એમના યુનિયનને એમની આંતરિક જૂથબંધીના લીધે આ કામ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અટવાયેલું છે। છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી આટલી ગરમીમાં ધગધગતા તાપમાં જ્યારે કોર્પોરેશનને વર્ષોથી સેવા આપનારા સ્ટાફ ધરણા પર બેઠું હોય ત્યારે અમે આજે દરખાસ્ત ચડાવી અને એ લોકોની માંગણી તાત્કાલિક પૂરી કરી એમને ન્યાય આપવા માટે ડિમાન્ડ કરી છે। જો કોઈ વ્યક્તિએ આમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોય કે આંતરિક જૂથવાદના લીધે કશુંક અટવાયેલું હોય તો એને માનવતાના લીધે બી આ ઇશ્યુથી દૂર રાખી અને તમામ કોર્પોરેશનના સ્ટાફ જોડે ન્યાય આપવાની અમે દરખાસ્ત ચડાવી છે। મેયરશ્રીએ એશ્યોરન્સ આપેલું છે કે ટૂંક સમયમાં અમે આનો નિર્ણય લેશું। અમે રાહ જોઈ રહ્યા છે શું નિર્ણય લેશે। આ સિવાય આજે સભામાં પાણી વિશે ખૂબ ચર્ચા થઈ। તમામ એરિયાઝમાં પાણીની વાત ચાલતી હતી, કશે લો પ્રેશર કશે કન્ટામિનેશન। ત્યારે કોર્પોરેશને એક પાણીની હેલ્પલાઇન બનાવેલી જેમાં લગભગ 1857 ફરિયાદ આવેલી પાછલા 1 મહિનામાં। કોર્પોરેશનના ઓન પેપર રેકોર્ડ પર 95% ફરિયાદ રિઝોલ્વ થઈ ગઈ એવું લખેલું છે। આ 1857માંથી લગભગ 1550 ફરિયાદ પ્રેશર લગતી હતી જે વર્ષોથી પ્રેશરના ઇશ્યુઝ હોય એને ફક્ત ઓન પેપર રિઝોલ્વ લખી દેવું એ ક્યાં સુધી યોગ્ય છે। લાંબા ગાળાનો આયોજનના કામ છે, પાણીના પ્રેશરને કામ છે। એ બાબતે અમે રજૂઆત કરી અને કમિશનર સાહેબને અમે જાણ કરી કે અમે આમાંથી રેન્ડમલી 10 જગ્યાએ ફોન કરેલો, ફક્ત કોઈએ ફોન પર ઇન્ક્વાયરી કરી છે, કશું જ કામ નથી થયું, તેમ છતાં ઓન પેપર એને એટેન્ડેડ બતાવી દીધેલું છે। શરૂઆતથી જ લારીઓના દબાણની ખૂબ ચર્ચા થઈ। અલગ અલગ વિસ્તારના લારીઓના દબાણની વાત કરી તો એક બાજુ તો ભારતના બંધારણે એમને લાઇવલીહુડનો હક આપેલો છે। સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ પોલિસી એક્ટ હેઠળ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે 2009થી પહેલાંની જે બી લારીઓ એને સર્વે કરી જ્યાં સુધી સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસી એક્ટ બને નહીં, એને હોકિંગ ઝોન આઈડેન્ટિફાઈ ના થાય, એ બી એ ઊભા છે ત્યાંથી 200 મીટરની આસપાસ એમને રિહેબિલિટેટ કરવા, ત્યાં સુધી એમને હલાવી શકાય નહીં, એમને ત્યાં કોઈ બી જાતનો દંડ વ્યાજ લીધા વગર ત્યાં રહેવાનો એમનો અધિકાર છે। એટ ધ મોસ્ટ 200 મીટર આગા પાછા ખસાડવાની હોય। એ હક મારીને હજારો લોકોને અહીંયા રોજ હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે। ત્યારે અમે ડિમાન્ડ કરી છે કે તાત્કાલિક સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસી એક્ટનો અમલ થાય અને ફક્ત લારીથી ટ્રાફિકને અવરોધ થાય એના સિવાય એવા અનેક દબાણો છે જે ટ્રાફિકના અવરોધરૂપ છે, એ દબાણો હટાવવાની વાત છે। અને એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્યારે ચોમાસું માથા પર આવતું હોય તો નદીના દબાણો હટાવવાનું બી છે। કોર્પોરેશને વિશ્વામિત્રીનો ડીપીઆર બનાવવા માટે 9 મહિના 10 મહિના પહેલાં ઇજારો આપી દીધેલો
અત્યારે એનો ડીપીઆર આપણા હાથમાં હોવો જોઈતો તો 5 દિન સુધી એક કાગળિયું સબમિટ નથી થયું. એના બાબતમાં કોઈ ચિંતા બી નથી ને કોઈ કમિશનર કે કોઈને એનું કોઈ નોલેજ બી નહોતું કે કઈ સ્ટેજ પર છે. એ બાબત ખૂબ ગંભીર છે અને જ્યારે ચોમાસું સામે હોય વિશ્વામિત્રીને તમામ કાંસોના તમામ દબાણ ખોલવાની કોર્પોરેશનની નૈતિક જવાબદારી બી છે અને ફરજ છે. બરોડા શહેરમાં કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન દર વર્ષે નાગરિકોને આ પાણીના ભરાવાના લીધે થતું હોય છે. રજૂઆત આજે મેં જે 2-3 દિવસથી વડોદરા શહેરમાં થઈ રહ્યું છે, એક કોમના લોકોને ટાર્ગેટ કરીને બીજા કોમના લોકો મારી રહ્યા છે, ખૂબ દુઃખદ વાત છે. બીજું કે આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનરનું મેં ધ્યાન દોર્યું છે કે યાકુતપુરા હોય, મોગલવાડા હોય, મચ્છીપીઠ હોય, દૂધવાળો મોહલ્લો હોય, એમાં રાત્રે 3-4 વાગ્યા સુધી લારીઓ ખુલ્લી રહે છે. ત્યાં આગળ ધમાલ મસ્તી કરતા હોય છે, આવતા જતા લોકોના એક્સિડન્ટ થતા હોય છે અને સામાન્ય એક્સિડન્ટમાંથી એક કોમી સ્વરૂપ અપાતું હોય છે ને ગુજરાતની શાંતિને ડહોળવાનું કૃત્ય જે લોકો કરતા હોય છે એ ત્યાંથી જ રાત્રે ખાઈ પીને નીકળતા હોય છે. રસ્તામાં એક્સિડન્ટ થાય છે અને એના લીધે પછી ટોળા બહાર આવે છે, ભગવાનની મૂર્તિઓ તોડે છે. એટલે લારી ગલ્લાઓ તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરાવવા જોઈએ એવું મેં મ્યુનિસિપલ કમિશનરને ધ્યાન દોર્યું છે. એ તાત્કાલિક અમે નિર્ણય લઈશું અને તાત્કાલિક ધોરણે આ લારી ગલ્લાનું દૂષણ તો દૂર કરીશું કે જે સવારે 3-4 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે છે અને ત્યાં બેસીને ધીંગામસ્તી થતી હોય છે. હું તમામ વડોદરા શહેરની વાત કરું છું કે જ્યાં પણ આ બદી હશે એ બદીને દૂર કરવા માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનરનું ધ્યાન દોર્યું છે અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરે તાત્કાલિક એક્શન લેવાનું બી એક પ્રોમિસ આપ્યું છે. એ પણ સાથે સાથે આવશે. અત્યારે તો મારો મુદ્દો માત્ર જે 2-3 દિવસ પહેલા એક એક્સિડન્ટ થયું ને એક્સિડન્ટમાંથી આખી વડોદરા શહેરની જનતાને હેરાન કરવાનું કામ કર્યું છે, સાંઈબાબાની મૂર્તિ તોડવાનું કૃત્ય કર્યું છે. ગઈકાલે રાત્રે 2 લોકોને પૂછવામાં આવે છે તારું નામ શું છે ને મારવામાં આવે છે. એ લોકો ક્યાં તમે જુઓ તો લારી ગલ્લાના લીધે ટ્રાફિક થાય છે, ટ્રાફિકના લીધે એક્સિડન્ટ થાય છે ને એક્સિડન્ટમાંથી આ કોમીનું સ્વરૂપ અપાતું હોય છે. दाहोद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कार्यक्रम में हाजिरी देने के बाद दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ने के लिए स्पेशल ट्रेन के ज़रिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वडोदरा रेलवे स्टेशन आ पहुंचे, जहां पर उनके स्वागत के लिए सूरत के सांसद दर्शनाबेन जरदोश, वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। इसके अलावा वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस का काफिला भी तैनात किया गया था। वैसे इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों को साझा किया। उन्होंने गति शक्ति यूनिवर्सिटी का सपना साकार होने के मामले में जानकारी दी, तो वहीं दाहोद में लोकोमोटिव बनाने वाली कंपनी के लोकोमोटिव दुनिया भर में सप्लाई होंगे, इस मामले में भी उनकी ओर से जानकारी मुहैया करवाई गई। तो वहीं बुलेट ट्रेन का कार्य कहां तक पहुंचा, इस मामले में भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो आइए आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। आज दाहोद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकल्प का फाउंडेशन स्टोन ले किया है। क्या है वो प्रकल्प? दुनिया भर में आज 9000 हॉर्स पावर के इंजन की तरफ सारी दुनिया मूव कर चुकी है। हमारे यहाँ जो 6000 4500 इंजन हॉर्स पावर के जो इंजन होते थे उसकी जगह वो तो बनता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ 9000 हॉर्स पावर का वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी से बने ऐसी कल्पना के साथ 1200 इंजन का पूरा कारखाना वहाँ पे बने, उसका आज फाउंडेशन स्टोन दाहोद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये 1200 इंजन का मतलब 20,000 करोड़ का वहाँ पे टोटल पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। तो नई फैक्ट्री बनेगी। दाहोद पहले एक वर्कशॉप था, अंग्रेज़ों के ज़माने से था, 1926 के ज़माने से, लेकिन पहले स्टीम था, स्टीम से डीजल में शिफ्ट हुआ, फिर वैगन की रिपेयर वगैरह होती थी, लेकिन अब एक बड़े पैमाने पे वहाँ पे नए इंजन बनेंगे जो कि एक लाइफलाइन बनेगी देश के लिए भी। और शुरू से वहाँ पे जो इंजन बनाएंगे उसमें इस कल्पना के साथ बनाएंगे मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। तो देश के लिए तो काम आए इंजन, इसके अलावा दुनिया भर में हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें, हमारे लिए गर्व की बात रहेगी कि गुजरात में बना हुआ
इंजन दुनिया भर में दौड़े, ऐसा एक गर्व की बात रहेगी। हो सकता है उसमें 4 साल 5 साल लगे, क्योंकि प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना सब बात है, लेकिन उसी उद्देश्य से शुरू से काम करेंगे। सर हमारा कुछ और बिल्कुल, बहुत जल्दी इसका कैबिनेट नोट, क्योंकि इसमें आपको पता है कि यूनिवर्सिटी बनाने का मतलब उसको पार्लियामेंट में ले जाना पड़ता है। आप सब जानकार हैं, आप प्रबुद्ध नागरिक हैं सब, तो जानकार है इस चीज़ के। उसका कैबिनेट नोट भी तैयार है, बहुत जल्दी कैबिनेट में अप्रूव होके गति शक्ति विश्वविद्यालय के इस पूरी परिकल्पना में प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है। देखो, आज हमारे पास देश में बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मेट्रो इंडस्ट्री तैयार हो गई है, देश भर में कई जगह मेट्रो है। एविएशन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। 3PL 4PL होता है, राइट। रेलवे अपने आप में एक विशाल समुद्र है। इस सब के लिए टेक्निकल नॉलेज जो चाहिए होती है, टेक्निकल प्लस इकोनॉमिक नॉलेज, ये सब का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता। आज यूनिवर्सिटी में एक मैकेनिकल इंजीनियर निकलता है मान लो, तो उसे मैकेनिकल की एक जनरल नॉलेज पता है, राइट। लेकिन रेलवे से रिलेटेड उसकी मैकेनिकल क्या होती है, रेलवे या मेट्रो या एविएशन या जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हमेशा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। भैया अगर आप स्टील इंडस्ट्री लो, तो स्टील इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर ब्लास्ट फर्नेस की सोचेगा, फैंस की सोचेगा। रेलवे में जब जाएगा तो एक मतलब आप सोचो 9000 हॉर्स पावर का क्या मतलब है। अगर साधारण भाषा में मैं समझूँ, अगर 9000 हॉर्स पावर के इंजन का क्या मतलब है, 9000 हॉर्स पावर के इंजन का मतलब है 10 मेगावाट का पावर प्लांट 100 की स्पीड से जा रहा है, 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। मतलब सोचो एक पावर प्लांट जब बड़ा होता है, वो पावर प्लांट आपको चलाना पड़ रहा है 100 की स्पीड पे, समझे। मतलब कितनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, सोचो उसकी करंट कैसे होगी, उसका हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक से हीट डिसिपेशन होगा कि नहीं होगा, व्हील और रेल के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ट्रैक्टिव एफर्ट कहाँ से आएगा, मतलब एक सब चीज़ें सोचने की होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट कॉलेज से पढ़ के आए, तैयारी से आए, तो सोचो उसको कितना बेनिफिट और ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट है कि नहीं। तो इस परिकल्पना के साथ प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय का रखा है, तैयारी है उसकी पूरी। बहुत जल्दी आप लोगों को ये शुभ सूचना मिलेगी। ऑनरेबल MP मैडम खूब परस्यू करती है। आपके तो रेल मंत्री गुजरात के ही हैं, तो आपको तो और आराम। तो सर ये गुजरात कौन कौन से देश इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मोजाम्बिक से अभी 4 इंजन गए, वो 4500 हॉर्स पावर के गए मोजाम्बिक को। एक जिम्बाब्वे का इंक्वायरी आई हुई है, एक साउथ अफ्रीका वाले पूछ रहे हैं। तो देखो, भारत की टेक्नोलॉजी के ऊपर पिछले 6-7 वर्षों में एक नया कॉन्फिडेंस दुनिया को आया है। अब उस कॉन्फिडेंस को हमको हर एक प्रोडक्ट में ले जाना है, उस कॉन्फिडेंस को हर एक प्रोडक्ट में ले जाना है। तो ये जो 9000 हॉर्स पावर का बनेगा, उसमें शुरू से इस भावना के साथ करेंगे कि दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करो। पार्लियामेंट में बोला ना आपको? नहीं बिल्कुल, पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट थोड़ा ना। आप अभी पहले बड़ौदा की बात करो, बड़ौदा की बात करो यहाँ पे ना। देखो, अब बड़ौदा की बात करते हैं। सबसे मेन बात है हमारा जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। आप सबने इस बीच में जाके देखा प्रोग्रेस? पिछले महीने 1.5 महीने में किसी ने जाके प्रोग्रेस देखी किसी ने आप में से? नहीं देखी? अगर सर पुल बन रहे हैं नर्मदा रिवर पर, ये बिल्कुल। देखो, बहुत तेजी से फाउंडेशन का काम, पिलर का काम, पिलर के ऊपर जो वायडक्ट होता है, गर्डर जो लगता है वो काम, उसके बाद में गर्डर को जोड़ते हुए उसके ऊपर ट्रैक, ये काम, राइट। कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में पहले ये सब काम होता है, सिविल इंजीनियरिंग का काम, उसके बाद साथ ही साथ स्टेशन का काम, यार्ड का काम, उसके बाद में उसके ऊपर ट्रेन, बराबर है। इसी तरीके से चलती चीज़। तो अभी बहुत तेज़ी से करीब 38 किलोमीटर, 352 में से 38 किलोमीटर का पिलर का काम करीब हो गया है। और बहुत मतलब हमारे इंजीनियर्स का मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई आगे जब मानसून आएगा, मानसून के टाइम में फाउंडेशन का काम करना मुश्किल होता है। तो करीब उन्होंने फाउंडेशन का काम करीब 48 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के आसपास, अंदाजन 50 किलोमीटर के काम फाउंडेशन का कर लिया है, ताकि मानसून के टाइम में ऊपर पिलर कास्ट करते रहे और ऊपर गर्डर बैठाते रहे, राइट।
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया अधिग्रहण है। की बात कर रहा हूँ सर, जमीन अधिग्रहण का बहुत status अच्छा क्या है? रिस्पॉन्स आने लग गया है। अच्छा, भाई पहले करीब 20-22% जमीन थी, अब करीब 70 तो नहीं हुई है, 68 के आसपास, अच्छा। 68 के आसपास हो गई है। यहाँ काम होने लग गया, जब काम होने लग गया तो समझे कि लोगों को लगने लग गया कि ये तो होना चाहिए। सर ये आंकड़ा जो आपने दिया ओवरऑल दिया या फिर महाराष्ट्र का अलग? महाराष्ट्र गुजरात का तो 97, 98, 99% है ना, गुजरात का तो पूरा है। सर तेजस के बाद कोई प्राइवेट ट्रेन चलाने का अभी देखो प्राइवेट ट्रेन्स पे काम नहीं है, अभी प्राइवेट ट्रेन्स पे काम नहीं हो रहा है। अभी हमारा देखो उद्देश्य क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य क्या है, देश में 50-60 वर्षों से एक पुरानी टेक्नोलॉजी पे सब ट्रेन्स चलती हैं। वो टेक्नोलॉजी 1950 में आई थी पहले ICF में, फिर 1970 में आई LHB, ये दो ही तो है टेक्नोलॉजी, इस दूसरे के अलावा तो तीसरी कोई नहीं है ना। तो ये दो टेक्नोलॉजी 50 और 70, अब आप बताओ इस रूम में जो बैठे हो उनमें से 1950 में जन्म लिए हुए कितने लोग होंगे? बहुत कम, बराबर है ना। आप सब यंगस्टर्स हो, नौजवान हो, आप दुनिया देखते हो, यूट्यूब देखते हो, दुनिया देखते हो, राइट। आपको पता है कि दुनिया भर में किस तरह की ट्रेन्स होती है। तो अपने को मॉडर्न ट्रेन मिलनी चाहिए, मॉडर्न ट्रेन भारत में डिज़ाइन होनी चाहिए, और मॉडर्न ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की मिसाल होनी चाहिए। इसी सोच के साथ 2017 में प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया रेलवे को कि भाई आप वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाने का प्रयास लो, संकल्प लो, लेकिन उसको डिज़ाइन पूरा भारत में करोगे, मैन्युफैक्चर पूरा भारत में करोगे। अब देखो जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, मान लो फ़ोन है तो पहले एप्पल iPhone 3 आया, फिर 4, 5, 6, 7, अब 13 तक पहुंचा। हर वर्जन से क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, बराबर है कि नहीं। हर एक जब वर्जन आता है, आप कैमरा ही आप देख लो, आपका कैमरा का पहले एक वर्जन था, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, बराबर है ना। तो पहला वर्जन वंदे भारत का निकला 2019 में, 2 ट्रेन आई, बहुत अच्छी चली। मतलब आप विश्वास करोगे, दुनिया हिली हुई है इन ट्रेन्स को देख के, सारी दुनिया हिली हुई है कि भाई 2 ट्रेन है जिसको मेंटेनेंस का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, और कम से कम वो 4 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। सिर्फ 2 ट्रेन अभी, राइट, लगातार चल रही है। टच वुड अभी तक उसकी परफॉर्मेंस गजब है। तो उससे जो हमको सीखने को मिला, क्या क्या सीखने को मिला, भाई अपने यहाँ नीचे जब मोटर लगी है, ये ट्रेन है अगर मान लो, है ना, ये ट्रेन है, ट्रेन के नीचे उसके पहिए दोनों एक्सल के ऊपर मोटर लगी होती है, राइट। तो उस मोटर के अंदर जो एयर इनटेक होता है, उस एयर इनटेक को कैसा रखना चाहिए, पहले एक्सपेरिमेंट से सीखे, क्योंकि उसमें डस्ट खूब आ जाएगी, तो कभी कभी पत्थर आ जाएगा, गिट्टी आ जाएगी, कई बार लकड़ी के टुकड़े आ जाएंगे, तो एयर इनटेक की डिज़ाइन चेंज की, राइट। फिर आपके ट्रैक की, हमारे ट्रैक्स की कंडीशन कैसी है, उस ट्रैक्स की कंडीशन के हिसाब से जो जैसे शॉक एब्जॉर्बर होता है ना कार में, तो इसमें अभी जो वर्जन बन रहा है, चेन्नई में जो बन रहा है अभी, उस वर्जन में एयर कुशन लगाया है, एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग का क्या मतलब है, देखो आप साधारण शॉक एब्जॉर्बर एक स्प्रिंग होती है, ऊपर नीचे होती है। अरे वाह, आज तो मैंने दाऊद का कड़ा पहना, क्या बात है, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसमें एयर कुशन है, एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग में एक, मतलब सोचो आप बड़ा सा एक तकिया अगर हो, तो बड़ा सा एक तकिया जैसा इमेजिन करो, और उसके अंदर स्प्रिंग है और एयर भी है। उससे आपकी राइडिंग क्वालिटी गजब इम्प्रूव हो जाएगी। जब ये ट्रेन आएगी दूसरा वर्जन, तो 2019 में पहला आया वर्जन, अब 2022 में दूसरा वर्जन आ रहा है। दूसरे वर्जन की करीब अपन बनाएंगे 75 ट्रेन बना रहे हैं, वर्जन 2 की 75 ट्रेन बना रहे हैं, जो कि 2023 के 15 अगस्त से पहले देश के कोने कोने में जुड़ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ वर्जन 1 और वर्जन 2 की लर्निंग से वर्जन 3 की तैयारी चालू हो गई। वर्जन 3 की तो बात प्राइवेट ट्रेन की नहीं है, बात यह है देश में कैसे एक नई टेक्नोलॉजी की अच्छी ट्रेन आए, जिसमें आप हम सब अच्छे तरीके से ट्रैवल करें।
बीते कई वक्त से लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते लोग काफ़ी परेशान थे। दरअसल गर्मियों की शुरुआत कब से हो चुकी है और लगातार गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में लोगों को गर्मियों की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन मौसम विभाग की आशंका के मुताबिक 3 दिनों तक बारिश की जो संभावनाएं जताई गई है, उसके चलते मौसम में अब बदलाव देखने मिल रहा है। दरअसल वडोदरा शहर के मौसम में कल से ही बदलाव देखने मिल रहा है और कल देर रात को शहर के कई इलाकों में धीमी बारिश भी दर्ज की गई थी। वैसे आज सुबह से ही वडोदरा में काले घने बादल छाए हुए हैं और उसकी वजह से लोगों को गर्मी से निजात भी मिल रही है। मांजलपुर इलाके में स्मशान भूमि निकट मशाखी मेलडी माता का मंदिर मौजूद है, जहां पर हर साल महाप्रसादी का आयोजन करवाया जाता है। ऐसे में इस साल भी वहां पर महाप्रसादी का आयोजन करवाया गया, जिसके तहत 5 से 6 हज़ार भक्तों ने उपस्थित रहकर महाप्रसादी का लाभ लिया। मांजलपुर विस्ताરમાં આવેલું મસાલી મેલડી માતાનું મંદિર આજે ભંડારાનું આયોજન કરેલું છે। ભંડારાના અહીંયા આનંદ ઉલ્લાસથી પ્રસાદીનું ગ્રહણ કરે છે। વર્ષોનું પૌરાણિક મંદિર મસાલની અંદર હતું અને બધા ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ થઈ ગઈ। એના અનુરૂપ વિભાગ ભંડારાનું આયોજન છેલ્લા 4 વર્ષથી કરી રહ્યા છે। ભક્તો પ્રસાદીનું ગ્રહણ કરે છે। માતાજી સર્વોની મનોકામના પૂરી કરે છે। केशोद की प्रोफेसर अकेडमी पर जूनागढ़ विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सभी अग्रणियों की उपस्थिति रही थी। जूनागढ़ से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक विश्व हिंदू परिषद की बैठक केशोद की प्रोफेसर अकेडमी पर आयोजित की गई थी, जिसमें जूनागढ़, पोरबंदर, वेरावल, ऊना के सभी जिम्मेदार हुद्देदार उपस्थित रहे थे। इसके अलावा इस बैठक की अगुवाई केंद्रीय मंत्री देवजी भाई रावत की ओर से की गई थी और बैठक की शुरुआत दीप प्रागट्य कर करवाई गई थी। दरअसल हिंदू समाज के सभी त्योहारों को धामधूम से मनाने के मामले में सभी को प्रेरित करते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया था। આજની આ જૂનાગઢ વિભાગની વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની બેઠકમાં વિવિધ સ્તરના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળ, દુર્ગા વાહિની, ગૌરક્ષા આયામના બધા કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। આગામી સમયમાં જૂનાગઢ વિભાગમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનું કામ પ્રભાવી રીતે ઊભું થાય, સામાજિક સમસ્યાઓ દૂર થાય અને સમતાયુક્ત સમરસતાયુક્ત સમાજનું નિર્માણ થાય, એ માટેના પ્રયાસના ભાગરૂપે આજની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વિવિધ સ્તર પર આગામી સમયમાં જિલ્લા કમિટીઓ, તાલુકા કમિટી, પ્રખંડ કમિટીનું નિર્માણ કરવામાં આવશે અને આ કમિટીઓમાં સમાજના દરેક વર્ગના લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ રહેશે। પ્રત્યેક તાલુકા સહ એક સેવા કાર્યનો પણ પ્રારંભ કરવામાં આવશે અને આજની બેઠકમાં કેન્દ્રીય અધિકારી તરીકે દેવજીભાઈ રાવતે સામાજિક સમરસતા ઉપર સામાજિક જે વિષમતા, અસ્પૃશ્યતા છે એ હિન્દુ સમાજનું દેન નથી, ધર્મને એની અનુમતિ નથી, એ ધર્મ આધારિત નથી, શાસ્ત્ર આધારિત નથી, એ સામાજિક વિકૃતિ છે, એના પર પ્રકાશ પાડીને આ સામાજિક વિષમતા, સમરસતા, અસ્પૃશ્યતાને दूर કરવા માટેના ભાગરૂપે એમણે પોતાનું પ્રવચન આપ્યું। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।